So yeah, let them come in and we'll discuss about your percentages, what you actually got at the end of this lecture. तब तक ज्यादा लोग आ चुके रहेंगे, तो फिलहाल वो डिस्कस नहीं करेंगे. फिलहाल हम पिछले बार जो आपको होमवर्क दिया था मैंने वो डिस्कस करता हूँ फटाफट. So this is the slideshow here. Polyfunctional group हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था, right? Yes, sir. Yes. And which one was the homework? If you can see. ये होमवर्क था. What's it? Nope. ठीक है, चलो. This was also done by me. This was the homework, yeah. This was the homework, right? Yes. Yeah. So see, what would be the name of this? As always, I'll tell you the name. You just cross-check with yours, and if you have any doubts, you can raise them. So the longest continuous chain will be this one. इसके अंदर में you can see you have two functional groups. One is cyanide, another one is amino. Since you have a double bond here, so it is hexene and not hexane. Now this cyanide group and this amino group, इसको हम priority order में check करते तो पता चलता है cyanide group has more priority than amino or amino, and thus cyanide group will be the principal functional group and NH2 सिर्फ एक substituent बन के रह जाएगा. तो cyanide अगर functional group है तो उसको nitrile suffix मिलेगा, and amine अगर substituent group है तो उसको prefix मिलेगा उसका, that is amino, also known as amino. Okay, so we just put amino straight up ahead as prefix. Then nitrile है तो E निकालने की अपने को जरूरत नहीं है. Okay, in this case because nitrile doesn't start with A, E, I, O, U, Y, वैसे start तो करता नहीं है, तो इसलिए E नहीं निकालेंगे हम लोग, and position देके अपना structure खत्म करेंगे. This is the name of this structure. कुछ लोगों ने अगर homework किया रहेगा तो you can just cross check, and if you have any doubts you can ask. No doubts. ठीक है. Then we had ये एस्टर का, तो मैं पूरा डिटेल में आपको समझाया था. What is ester, how the name is done and everything. फिर शायद ये होमवर्क था आप लोगों का. This was the homework. So let us see. This is the longest continuous carbon chain in which you find 5 total carbons. Then you have a double bond, and thus you will call it ene and not ane. Then you have a CHO over here, that is your aldehyde group. So of course aldehyde को preference मिलेगा, और alkene कैसा भी हो preference मिले ना मिले वो ene है, तो वो तो last में ही आता है. ठीक है. So ene का ene ही रहने वाला है और aldehyde का suffix that is al लगने वाला है. तो last का e निकाल के हम लोग al put कर देंगे, so it becomes pent ene al. थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे डिलीट होना चाहिए था, 1 ही है. This is 3-methyl pent 4-ene al. 3-methyl pent 4-ene. You can understand अगर alkene ये साइड में, aldehyde ये साइड में, तो नंबरिंग कहाँ से होगा? नंबरिंग हमेशा CHO फंक्शनल ग्रुप के साइड से होगा. फंक्शनल ग्रुप को टॉप प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को प्रायोरिटी मिलता है. And that is why numbering will be done from CHO side, and this is the name. Doubts? Hurry up guys, this may be our second last lecture of IUPAC, and probably in the next lecture we'll be done with IUPAC completely. Okay. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, if you remember. लास्ट में CHO आएगा, and if it is a lower functional group तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, तो हम लोग ऑक्सो लिखते हैं. ये बहुत लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग ऑक्सो लिखते हैं.
फिर ये आपको होमवर्क दिया गया रहेगा डेफिनेटली, एंड यू ऑल, आई नो दैट हाउ मेनी 25 ऑफ यू, सो एटलीस्ट 5-6 लोगों ने तो ट्राई सिंसियरली किया ही होगा, राइट? सो या प्लीज क्रॉस चेक दिस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी. सो जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो कुछ बच्चे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है भाई. अगर अपने को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पता है तो इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील. सो व्हाट यू सी हियर इज, you see the longest continuous chain in this pattern where all these things are carbon. This is carbon, 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 and of course carbon. Okay, then you should understand 7 carbon है तो हेप्ट और डबल बॉन्ड नहीं है. कुछ लोग बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो डबल बॉन्ड सोच के इन लिख देते हैं. भाई कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ये वाला होगा तब इन लिखेंगे, लेकिन सर इन लिख सकते हैं हम लोग कैसे? सर यहाँ पे भी तो है. अरे हाँ, सो कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन और किसी भी और एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड है तब हम लोग इन नहीं लिखते. देयर शुड बी कंपल्सरी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तब हम लोग इन लिखते. ओके, एंड दैट इज व्हाई इसकी वजह से इन नहीं लिखा गया, इसके वजह से इन लिखा. ठीक है, सो हम हेप्टीन लिख देंगे इसके लिए. ओके, फिर देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. तो लोग इसको अल्कोहल बोलते हैं, कुछ लोग कीटोन बोलते हैं. बोलते सर कीटोन भी है अल्कोहल भी है. अरे भाई ये C डबल बॉन्ड OOH है, मतलब अगर साथ में शॉर्टकट में लिखूं तो ये आपका COOH है, म्हणजे कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, होते हैं आप लोग में से कुछ लोग लगता है नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, बट वी हैव सीन दिस पैटर्न फॉर सो मेनी इयर्स. तो बहुत लोगों को लगता है कीटोन और फंक्शनल ग्रुप पे अल्कोहल साथ में, तो प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से फिर लिखने को बैठ जाते हैं, हाइड्रोक्सी नहीं ये नहीं वो. So yes, this is carboxylic acid. This is double bond here. Numbering कहाँ से होगा? Of course, carboxylic acid के साइड से ही numbering होने वाला है. So numbering करने के बाद आपको पता ही है कि उसका suffix होता है oic, और क्योंकि वो O से start हो रहा है तो last का E निकालते हैं हम लोग और oic को लिख देते हैं. One लिखो मत लिखो doesn't matter. And then after that, you see 2 methyl groups as well. At which positions? At 2nd and 6th position. So you go ahead and write 2,6 dimethyl hept 5 enoic acid. क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन भी मेंशन करना पड़ता है भाई, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड का पोजीशन 5th जगह पर मेंशन करके बोल दिया 5 इन. इसमें किसी को कोई डाउट? जो लोगों ने सॉल्व किया होगा या जिन्होंने नहीं सॉल्व किया होगा और अभी फ्रेश देख रहे हैं, एंड यू हैव एनी डाउट्स? सर कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? नो आई कांट. और कोई? फुल रिपीट नहीं किया था बेटा, फुल नहीं. कहीं पे स्पेसिफिक डाउट है वो पूछा करो कि ये कैसे आ गया सर. Sir, कोई? Yep. so how do we come to know that here in the 6th position there is a methane? मिथाइल ग्रुप, राइट? Yes, sir. मिथाइल ग्रुप. Yes. क्योंकि बेटा यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे निकला हुआ है ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या सिखाता है अपने को? ऐसा कि स्ट्रक्चर है कोई और यहाँ पे आपने एक लाइन निकाल दिया, और इसको आपने अगर पेरेंट सिलेक्ट कर लिया है, इसको अगर आपने पेरेंट सिलेक्ट कर लिया है तो पेरेंट के बाहर जो एक लाइन निकला है मतलब वहां पे एक कार्बन बैठा होगा. एक कार्बन और ये लाइन मतलब एक बॉन्ड होता है, तो 3 और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी गोल्डन रूल फॉलो करते हुए. तो ये मिथाइल हो गया ना. Okay, sir. Thank you. ओके सर, थैंक यू. मेरे को भी यही जानने का था. हाँ तो बेटा स्पेसिफिक पूछने का इसी. थर्ड ये भी नहीं, ये हमने ड्रॉ कर लिया था क्लास में ही हमने ड्रॉ किया. फिर ये शायद आपको ड्रॉ करने के लिए दिया गया होगा एज होमवर्क. तो देख लो, बड़ा ही सिंपल सा है भाई. ब्यूट म्हणजे 4 कार्बन, तो हमने 4 कार्बन ड्रॉ कर दिया. एन है मतलब So this was सबसे done. एक्सक्यूज मी, This was done. this was done. Okay, ठीक है. So you can see 2 alcohols are there. You just put over 2 alcohols, then you have ethyl group, put over there, and then that's it. Structure completed. What about this one? Is this the homework? No, sir. No, ये भी solve किया. ठीक है भाई. So ये ले लो, ये भी solve हो गया तुम्हारे सामने. Even if you have doubts, अभी इस lecture में you can ask, of course. भले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है.
बढ़िया। सो ऐसे कुछ होते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, ऐसे कुछ होते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। देयर विल बी मेनी सच एग्जांपल्स कमिंग अप इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, कि जो एग्जांपल हमने अभी सॉल्व नहीं किया, बट हमने आपको हर एक कैटेगरी जो भी IUPAC में आपको 11th 12th में लगता है, वो सारे कैटेगरीज बताने की कोशिश की है। इससे भी भयंकर भयंकर भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो जब वो एग्जांपल आएगा, अगर आपको पैटर्न याद है, मेरे बेसिक 5 रूल्स याद है, और जो मैं इतना कुछ इतने दिन से कर रहा हूँ, चिंटू मिंटू रूल्स यहाँ वहां ड्रॉप कर रहा हूँ, इफ यू हैव मेंटेन्ड अ बुक, यू हैव रिटन इन योर ओन हैंडराइटिंग समवेयर, क्या सर ने ये भी बोल दिया था, सो इट इज नॉट एट ऑल अ बिग डील टू राइट IUPAC नेम्स और टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ द नेम्स। ओके, सो IUPAC नेम्स है बहुत बड़ा हवा बना के रखा गया, बहुत डिफिकल्ट है भाई, इतना नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं कभी जिंदगी। रूल्स फॉलो करो, जो हमने साथ में डिस्कस किए, वो सब कॉन्वर्सेशन डिसाइड करके रखो कि सर ने इसके लिए क्या बोल दिया था, इसके लिए क्या बोल दिया, ठीक है। वरना एग्जाम्पल्स तो अभी हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ने ये वाला पार्ट नहीं सिखाया। पार्ट हम 11th 12th के लिए सब सिखा रहे हैं, और भी भयंकर पार्ट आएंगे जो एंट्रेंस में आए, वो मैं आपको 12th में सिखाऊंगा कि एंट्रेंस में ये सब चीजें आ सकती है, 11th में आपको बता के वो डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, so after polyfunctional groups we are heading into benzene। आज हम बेंजीन देख रहे हैं। नया बेंजीन जो स्ट्रक्चर है वो हम सबको पता है फ्रॉम लोअर स्टैंडर्ड्स इटसेल्फ, C6H6 is your benzene, right? Now this benzene has a very beautiful, unique, stable structure of alternate double and single bonds। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड इसको बोल सकते हैं हम। इसके अंदर सपोज कहीं से भी एक H को निकाल के मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूट अटैच कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कॉमन सेंस, अगर दो कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट अटैच कर दिया तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज पॉली सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे, या सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं ऑन बेंजीन। तो पहले हम देख रहे हैं सिर्फ मोनो, सिर्फ मोनो। तो मोनो में क्या देखेंगे हम लोग, सपोज ये बेंजीन है, इस बेंजीन से हमने एक H को निकाल दिया और वहां पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, दैट इज क्लोरीन। नाउ यू ऑल शुड रिमेंबर बाय नाउ दैट हैलोजेंस, उनका सफिक्स नहीं होता, उनका प्रीफिक्स होता है। उनका प्रीफिक्स क्या होता है, हैलो। तो क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, लाइक दैट। तो ये क्योंकि ये प्रीफिक्स में आएगा तो हम सीधे सीधे इसका नाम लिख देंगे क्लोरोबेंजीन। It will be chlorobenzene। ओके, बड़ा ही सिंपल सा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। वही H निकाल के मैंने NO2 डाल दिया, तो आपको वही याद रखना पड़ेगा कि इसका सफिक्स है कि नहीं। सफिक्स नहीं है क्या, प्रीफिक्स है, नाइट्रो, हाँ तो लिख दो फिर नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद अभी H निकाल के हमने Br डाल दिया, अच्छा हाँ ये भी प्रीफिक्स में आएगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट, अगर उसके ऊपर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप्स दिख जाता है जैसे कि OH, जिसका सफिक्स पॉसिबल है, तो आपको सफिक्स के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भाई साहब का जितना भी IUPAC अभी तक हमने किया है, उस लॉजिक से अगर देखेंगे ना, तो ये भाई साहब का नाम होना चाहिए बेंजीन, लास्ट का E निकालना है और वहां पे ऑल लिखना है। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. So benzenol was the name which was used a lot in olden days। आज से 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। It was used a lot, but slowly and steadily Latin का ज्यादा इस पे इम्पैक्ट हुआ, और लैटिन लैंग्वेज में हम बेंजीन को फीन भी बोलते हैं, बेंजीन को फीन बोला जाता है। तो अल्कोहल आने की वजह से वहां पे वो लोग फिनॉल 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 यूज करते थे, ठीक है। तो ज्यादा करके वही स्प्रेड होने लगा और इसका नाम जो हो गया वो हो गया फिनॉल। सर क्या दोनों नाम करेक्ट है? दोनों नाम करेक्ट है। सर एग्जाम में हमें आएगा तो हमें क्या यूज करना है? हमें फिनॉल यूज करना है, बेंजीनॉल यूज नहीं करना है, ठीक है। बेंजीनॉल यूज नहीं करना है क्योंकि ज्यादा कॉमनली यूज्ड अभी फिनॉल वर्ड हो गया है, तो हम फिनॉल ही वर्ड यूज करें, ओके। वैसे H से CH3 लगा दिया तो हमें पता है कि इसका सफिक्स नहीं है, ये तो प्रीफिक्स वाला बंदा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मिथाइल बेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल बेंजीन। बट इट हैज अ स्पेशल नेम एज वेल। ये जो नीचे ब्लैक में मैं लिख रहा हूं वो प्रॉपर IUPAC नेम।
और ऊपर जो आपको पर्पल पिंकिश में कुछ नजर आ रहा होगा वो स्पेशल नेम है जो आपको यूज करना है ज्यादातर, ठीक है। सो टोलुइन, बेंजीन पे CH3 को कॉमनली हम बोलते हैं टोलू, कॉमन इट इज कॉल्ड टोलू। फिर NH2 आ गया, तो तुम लोग बता सकते हो अब इसका IUPAC प्रॉपर नेम क्या होगा? अमीनो बेंजीन, रॉन्ग, इसका सफिक्स पॉसिबल है भाई? अमाइन बेंजीन, Benzenamine. बेंजीनामाइन। इट विल बी बेंजीन, लास्ट का ई निकाल के अमाइन। अभी कंफ्यूजन चालू हो रहा है, ध्यान देना जरा, बेंजीन अमाइन। बट एक्चुअली क्या होता है कि बेंजीन अमाइन ज्यादातर बुक्स में आपको नजर नहीं आता है, आपको बुक्स में ये नजर आता है बेंजामाइन, बेंजामाइन, ठीक है। और उससे भी ज्यादातर आपको ये स्पेशल नेम नजर आएगा। इसको मैं स्पेशल नेम बोल रहा हूँ, कॉमन नेम बोलना भी गलत हो जाएगा, इनको स्पेशल नेम बोला जाएगा, एनिलीन। यस, तो ज्यादातर एनिलीन ही इसको लिए यूज करते हैं, भले कॉमन नेम बोल रहे हो या तो IUPAC नेम बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है। कॉमन हो या IUPAC, इसको हम लोग एनिलीन ही बोलते हैं। वरना बेंजामाइन या कहीं कहीं पे आपको बुक में बेंजीनामाइन भी दिख जाएगा, पर हमें यूज करना है एनिलीन, हमें यूज करना है एनिलीन। All these things are available in your textbook as well, so don't worry कि भाई टेक्स्ट बुक में नहीं ये सारी अभी दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक में ये सब अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। फिर H निकाल दिया, COH आ गया। सो नॉर्मली इसका नाम कोई गेस कर सकता है? नॉर्मल IUPAC नेम क्या होगा इसका? Benzenoic acid. यस, इट शुड बी बेंजीन, लास्ट का ई निकाल के ओइक एसिड, सो बेंजीनोइक एसिड। बट बेंजीनोइक एसिड आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, इसको नेम दिया गया है बेंजोइक एसिड, अर्थात सिर्फ बेंज लिखना है। यस, जैसे बेंजामाइन हो गया ना, वैसे बेंजोइक एसिड। ये नाम हम देने वाले हम तो है नहीं, तो जो साइंटिस्ट ने उस टाइम पे दिया था वही स्टक हो गया, अभी तो वही यूज करते आ रहे हैं हम लोग अभी। सो इट इज बेंजोइक एसिड, ओके। इसका एक और है नाम, वक्त आने पे आपको दिया जाएगा। ये भाई साहब कोई गेस कर सकता है इसका नाम? प्रॉपर IUPAC नेम? बेंजेनल। नो, रॉन्ग। देखो पहचानो कौन है वो, फंक्शनल ग्रुप है वो, ईथर है, तो ईथर का सफिक्स होता है क्या? होता है तो बताओ, नहीं तो प्रीफिक्स के साथ बताओ। मिथॉक्सी बेंजीन, सानिका ने बोला, एंड स्वाति शायद बोल रही थी, या मिथॉक्सी बेंजीन। देखो ना, अगर मैं CH3O C2H5 तो मैं देता हूं, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? बड़ा वाला कौन है? ये, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मिथॉक्सी, और इसको इथेन बोल देते हैं। मिथॉक्सी इथेन IUPAC नेम होता है। तो वैसे इस भाई साहब का IUPAC नेम क्या होगा? इस भाई साहब का नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। It will be methoxybenzene, but it has a special name as well, and it is called anisole. ठीक है, not anisole नहीं, सोल नहीं, zole. So it is methoxybenzene, or specially it is called anisole. ठीक है, तो ये सब नाम आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सकता है बेंजीन के स्ट्रक्चर्स मेमोराइज कर लो आप। सर व्हाट इज बेंजल एंड बेंजाइल? बेंजल एंड बेंजाइल, बेंजाइल इज, ये बगा वो बताने वाला हूं मैं भी, अभी नहीं, चलो आगे बता ही रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं बताता हूँ मैं। चलो होल्ड दैट थॉट, अगर नहीं आपको मैंने, हाँ जी सर, इधर ही आ गया। सो बेंजीन को लेकर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है एवरेज स्टूडेंट्स, दोज हु आर अबव एवरेज, उनको कुछ रीजन के लिए अबव एवरेज बोला जाता है, लेकिन जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको देखा गया है ऐसा कि बहुत तकलीफ होता है उनको 12th के एंड तक। क्या तकलीफ होता है कि वो लोग फिनाइल और बेंजाइल में फर्क नहीं कर पाते, फिनाइल और बेंजाइल में फर्क नहीं कर पाते। ठीक है गाइस, जब बेंजीन से, सुनना ध्यान से,
जब बेंजीन से आप एक H निकाल दो, जो बॉन्ड पेंडिंग होगा, तो हमारा मन करेगा उसको बेंजाइल बोलने का, बट ऐसा नहीं है। इट इज कॉल्ड फिनाइल, क्योंकि बेंजीन को हम क्या बोलते थे, फीन, याद है? तो फिनाइल इसका नाम पड़ गया उस जमाने से ही। तो बेंजीन से एक H निकाला, C6H5 हुआ, उसे फिनाइल कहते हैं। जब उस C6H5 पे एक और कार्बन का अटैचमेंट होता है along with required amount of hydrogen with one bond pending of course, तो उसे हम बोलेंगे बेंजाइल, उसे हम बोलेंगे बेंजाइल। ओके, एक मिनट, इसे हम कहते हैं बेंजाइल। सो मैं यहाँ पे खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ, फटाफट देखो। अगर ये है तुम्हारा कुछ, किसने पूछा क्या है, तो ये बेंजीन है, कंपाउंड है, इसका एक बॉन्ड पेंडिंग है, तो क्या है ये, फिनाइल है। ठीक है, देखना जरा, ध्यान देना। वैसे ही इसका भी, ये क्या है बताना जरा, सेकंड जो मैंने ड्रॉ किया है वो, फिनाइल। ये भी फिनाइल है। कहां से एक बॉन्ड पेंडिंग है दैट डजंट मैटर, कहीं ना कहीं पे एक बॉन्ड पेंडिंग होना चाहिए, दैट इज फिनाइल ऑफ कोर्स। जब उस पे एक कार्बन और CH3 लिख दूंगा मैं, CH3 लिख दूंगा, दैट बिकम्स अ कंपाउंड, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन, अभी अभी सीखा हम लोगों ने। But if I have something like this, CH2 with a bond pending, so it is a group, and this group is called benzyl. This group is called benzyl. ठीक है? वैसे ही सपोज सिर्फ CH रहेगा और दो बॉन्ड पेंडिंग रहेगा, सिर्फ CH रहेगा और दो बॉन्ड पेंडिंग रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं बेंजल, उसको हम बोलते हैं बेंजल। ठीक है, बेंजल ग्रुप बोलते हैं उसको। तो ये तो फिलहाल आप नहीं देखने वाले हो, ये एंट्रेंस में आपको नजर आएगा, बट ये दोनों आप बहुत देखने वाले हो, फिनाइल और बेंजाइल। गॉट इट? यस सर। अब जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने में है, किसने पूछा इसका नामकरण कर, तो नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण ऐसे करेंगे हम लोग कि हम देखेंगे बेंजीन पे कार्बन कितना है। बेंजीन के कार्बन है 6 कार्बन है, ठीक है। ये जो साइड चेन करके यहाँ पे अटैच्ड है, एलिफेटिक चेन, स्ट्रेट चेन, उस पे कार्बन कितना है? तो टोटल कार्बन आप देखोगे उसके अंदर है 7, जिसमें जितना ज्यादा कार्बन वही आपका पैरेंट चेन होने का उम्मीदवार होगा। ठीक है, सो ये पैरेंट चेन हो गया। अच्छा, तो हेप्टेन पैरेंट चेन। सर व्हाट इफ दोनों में सेम ही हो तो फिर किसको चूज करेंगे? उस पे भी आ रहा हूँ मैं, डियाना, डोंट वरी। सो इफ यू हैव द लॉन्गेस्ट चेन जिसमें भी कार्बन ज्यादा रहेगा, वो पैरेंट चेन सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पे स्ट्रेट चेन जो था उसको मैंने पैरेंट चेन बोल दिया। Then the benzene right now is no longer a benzene, it is a substituent, and that would be called phenyl. And you will number that parent chain properly, and you will write the name of this compound as 2-phenylheptane. 2-phenylheptane. ठीक है ना? ओके, 2-phenylheptane. फिर ये स्ट्रक्चर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर पे क्या देखते हैं हम लोग कि अगर सपोज कि NO2 नहीं होता और ये CH3 होता, सपोज, देन पैरेंट कौन होता? बेंजीन। बेंजीन होता, एंड वो ब्यूटाइल बन के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रह जाता। बट व्हाट यू नोटिस हियर इज कि भले ही इट इज द शॉर्टर चेन, बट इट हैज अ फंक्शनल ग्रुप ओवर इट। इट हैज अ फंक्शनल ग्रुप ओवर इट, एंड यू कैन नेवर एवर इग्नोर अ फंक्शनल ग्रुप। सो वो छोटे चेन को भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन नहीं रहा, बट वो पैरेंट चेन है। एक्सेप्शन केस हम पहले ही सीख चुके हैं कि यू कैन नेवर इग्नोर अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो इन दिस केस दिस इज स्टिल द पैरेंट चेन। एंड नंबरिंग करने के बाद आप नामकरण करोगे और ये रहेगा इसका नाम कि फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो है, then third position पे phenyl, so 1-nitro-3-phenyl butane. Doubts? No, sir. Like see this one कि इसमें what you can see is, और चिंटू सा एक बेंजीन इतना बड़ा कार्बन है
और उधर ऊपर में एक कार्बन उस पर OH अटैच्ड है, डजंट मैटर, एक भी कार्बन अगर रहेगा और उस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, सो उसको ही आपको पैरेंट चेन लेना पड़ेगा। ओके, इतना बड़ा फंक्शनल ग्रुप का अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, व्हाट होता है उसको। ओके, सो यू हैव दिस एज द पैरेंट चेन। ओके, दिस एज द पैरेंट चेन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई गेस कर सकता है? फिनाइल इथेनॉल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल। यस यस, क्योंकि ये तो पैरेंट हो गया ना गाइस, देखो ये तो पैरेंट हो गया, तो पैरेंट पे एक ही कार्बन है, तो वो हो जाएगा मीथेन। लास्ट का ई निकालेंगे, नए स्टूडेंट्स कुछ होंगे तो प्लीज फोकस, एक कार्बन है इसलिए मीथेन, अगर लास्ट का ई निकालेंगे तो यहाँ पे ऑल आ जाएगा, तो मिथेनॉल, और उसी फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल भी अटैच्ड है, सो वी कॉल इट फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल। This is the IUPAC name of this particular structure, but we will see a common name as well. ये भाई साहब का कॉमन नेम क्या होगा, याद करो, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है गाइस, अभी सिखाया तुम लोगों मैंने, ग्रुप कौन सा ग्रुप है ये जो सर्कल किया है मैंने, बेंजाइल, ओमकार, करेक्ट। सो इसको हम लोग ये भी नाम दे सकते हैं कॉमन नेम में, बेंजाइल अल्कोहल, commonly it is called benzyl alcohol. IUPAC wise it will be called phenyl methanol, commonly it is called benzyl alcohol. Got it? नेक्स्ट, ये वाला नाम तो तुम लोग ही दे दोगे यार, ठीक है ना, चलो इसका नाम दे दो फटाफट, ये वाले स्ट्रक्चर का। Go for it. IUPAC name is important, Omkar. क्या बोलते हैं IUPAC name of this structure? प्रॉपर रूल्स याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन पॉइंट है, बट लेट्स सी कौन राइट कौन रॉन्ग होता है। स्वाति ने बोला है इट इज फिनाइल क्लोरोप्रोपेन। ओके ओके, एनीवन एल्स? क्लोरो 3-phenyl propane. Adarsh says it is chloro 3-phenyl propane. That is, जैसे कि अनस ने बोला 1-chloro 3-phenyl propane. ठीक है, पहली बात तो स्वाति, whether it is wrong or right, name wise प्रॉपर IUPAC के रूल्स फॉलो करूंगा तो आपको एग्जाम में रॉन्ग ही मिलने वाला है। रीजन, आपने नंबर नहीं दिया इसको। जब आप फिनाइल और क्लोरो साथ में लिखते हो, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल भी है, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो भी है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, सो अनस, सारा एंड आदर्श, ये तीनों ने एक ही नाम दिया है यहाँ पे, सो लेट अस गो विद दैट, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। सो द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का बात ही नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो पैरेंट चेन ये रहने वाला है। बात आती है इसके अंदर गाइस कि हम लोग पैरेंट चेन का नाम तो चलो लिख देंगे, बट नंबरिंग कहां से होगा? तो गाइस रिमेंबर, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाता है, एंड दिस क्लोरो इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सिंस you use prefix chloro, not a suffix, you use chloro, right? These are weak functional groups. तो जब ऐसा दोनों को प्रीफिक्स से लिखना होता है, तब अल्फाबेटिकली कंपटीशन होता है उनके बीच में, अल्फाबेटिकल कंपटीशन होता है, ठीक है? तो अल्फाबेटिकल कंपटीशन में आप क्या देखते हो, ये C है और ये P है, and that is why chloro wins. तो क्लोरो के साइड से नंबरिंग होता है, and that is why you have one position, first position pe chloro and third position pe phenyl, and not the other way around. Okay, so 1-chloro 3-phenyl propane is a proper name of this structure. Doubts? Good.
चलो इसमें तो नहीं आया, तो ठीक है। किसी ने एक डाउट पूछा था कि सर अगर बेंजीन पे और अपना क्या नाम है उसका साइड चेन पे दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन आया तब क्या करेंगे? तो इसका जवाब वही है जो मैंने साइक्लिक वाले में जवाब दिया था आप लोगों को। किसी को याद होगा तो साइक्लिक चेन अगर जितना भी कार्बन रहेगा और साइड चेन में भी सेम कार्बन रहेगा तो साइक्लिक चेन विल विन। ओके, इफ देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये सब चीजें नहीं है। वैसे ही बेंजीन में 6 कार्बन है, उस पर एक चेन लगा हुआ है जिसमें 6 कार्बन है विदाउट फंक्शनल ग्रुप्स, तो बेंजीन जीतेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये अभी तक हम लोगों ने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स देखा था। अब हम देखेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। उसमें पहले आता है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है डाई सब्स्टिट्यूशन के बाद। ट्राई में उतना इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनता इसका, डाई में बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ट्राई में भी, टेट्रा में भी, पॉली तो बनता है, बट डाई बहुत ही यूनिक है जो बहुत बार हम लोग यूज करने वाले हैं अभी से लेकर 12th स्टैंडर्ड एंट्रेंस में। So what happens in di-substituted benzene? You remove 2 hydrogens and you replace them with either functional groups or substituent groups. So like example यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना जो सिखाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे अभी। Suppose you have a benzene और बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, कोई तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड पोजीशन पे कुछ अटैच्ड है, मतलब इस पूरे बेंजीन में पोजीशन कौन सा यूज हुआ है? 1,2 पोजीशन यूज हुआ है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। जब 1,2 पोजीशन यूज होता है तो कॉमनली इट इज कॉल्ड ऑर्थो। इट इज स्टार्टेड विद, और इट स्टार्ट्स विद ऑर्थो और सिंपली स्मॉल ओ, ऑर्थो या स्मॉल ओ। वैसे ही अगर फर्स्ट एंड थर्ड पे आपको कुछ नजर आया, सेकंड पे नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड, हम क्या कर रहे हैं गाइस? हम डाई सब्स्टिट्यूटेड कर रहे हैं। सिर्फ 2 चीज अटैच होनी चाहिए बेंजीन पे, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, चाहे वो सेम हो दोनों चीज। तो अगर 1,3 पोजीशन पे कुछ आता है तो उसे हम स्पेशल नेमिंग देते हैं मेटा। लिखने के टाइम आपको मेटा लिखना नहीं पड़ता, आप सिर्फ एम लिखते हो, बोलते हैं मेटा। और वैसे 1,4 पोजीशन पे आ गया तो उसे पैरा बोला जाता है, पैरा। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा कि सर अगर 1,5 होगा तो 1,5 पॉसिबल ही नहीं है। रीजन, क्योंकि अगर यहां कुछ चीज अटैच हुआ ना गाइस, तो फिर नंबरिंग में ये साइड से करूंगा ना, क्या बोलते हो? लोवेस्ट सेट ढूंढते हैं ना हम लोग, तो नंबरिंग तो मैं ये साइड से करूंगा, तो फिर से 1,3 हो गया वो। तो 1,5 जैसी कोई चीज नहीं होती डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा ना। 1,5 कुछ नहीं होता, 1,6 कुछ नहीं होता। So remember this thing very well for benzene वाले structures, ortho, meta, para, ortho, meta, para। तो जब आप डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखते हो यहाँ पे, तो ये ऐसे नाम हम लिखते हैं जो IUPAC में भी एक्सेप्टेड है। बट हम फिलहाल प्रॉपरली IUPAC नेम भी देखेंगे। देखो IUPAC नेम इसका होना चाहिए 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको स्पेशल नेम जो हमने यूज किया है प्रीफिक्स देके ऑर्थो, तो हम इसको बोल सकते हैं ओ डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो तो समझ जाएंगे अपने आप कि 1,2 की बात चल रही। क्लियर है? यस सर। वैसे ही तुम लोग भी बता दो पहले तो इसका IUPAC, प्रॉपर IUPAC नेम बताओ इसका। वन कॉमा 3 डाई अमाइन बेंजीन। रॉन्ग स्टडी। और कोई? 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। करेक्ट, 1,3 डाई नाइट्रो। H2 होता है अमाइन, NO2 होता है नाइट्रो। ये टाइम लगेगा, मेमोराइज करो। तो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। और ये जो ऑर्थो मेटा पैरा सीखा हमने, उस हिसाब से क्या नाम आएगा इसका? पैरा नाइट्रोबेंजीन। सर मेटा। यस सर, मेटा। यस, M, करेक्ट।
So the correct name is M-dinitrobenzene. M meta. 1,2 ortho, 1,3 meta, 1,4 para. फिर जैसे अभी ये दो चीज आ गया, हमें पता है ये पैरा है 1,4, बट भाई इन दोनों में अपने को नंबर तो करना पड़ेगा कि हम नंबर ऊपर से स्टार्ट करें इधर से, कि हम नंबर इधर से स्टार्ट करें। समझ में आ रहा है? तो वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुमने इतना यूपीएससी सीख के रखा है। तुम लोग ही बता दो क्या रहेगा और क्यों रहेगा, which and why। कहां से प्रॉपर नंबर करेंगे हम लोग? ब्रोमीन से। ब्रोमीन। रीजन अल्फाबेटिकली वो पहले है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Yes, sir. अल्फाबेटिकल सामने लिखा हुआ भी है भाई, बहुत इजी। तो इसीलिए इट शुड बी 1 2 3 4 एंड द नेम विल बी ऑफ कोर्स 1 ब्रोमो 4 आइडोबेंजीन, या तो फिर P ब्रोमो आइडोबेंजीन। सिर्फ P ब्रोमो आइडोबेंजीन लिखेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि पैरा वर्ड यूज किया है, मतलब एक फर्स्ट पे है एक फोर्थ पे है। क्योंकि आपने ब्रोमो पहले लिखा है तो वो ये भी समझ जाएगा कि अच्छा फर्स्ट पे ब्रोमो है और फोर्थ पे आइडो है। सो P ब्रोमो आइडो बेंजीन। चलो फटाफट लाओ कर इसका नाम, IUPAC या पैरामेटा जैसा आपको देना है वो दो। कॉमन नेम या IUPAC? सर 1 क्लोरो 3 नाइट्रोबेंजीन। 1 क्लोरो 3 नाइट्रोबेंजीन, ओके। और दूसरा पैरामेटा वाले में? सर मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। Yes, Sarah. Yes. So it should be, few voices are overlapping, तो sometimes कुछ लोग का नाम दिखता है यहाँ पे, so I may वो बोल कुछ कोई और रहा है और मैंने नाम किसी और का ले लिया, excuse me for that. So this is yes, M chloro, that is meta chloronitrobenzene, or else you can go for 1 chloro 3 nitrobenzene. दोनों चीज पता होना चाहिए। स्पेशल कंपाउंड, जो नेम्स आपको मैंने बताए थे, स्पेशल कंपाउंड्स, ठीक है? स्पेशल के बस बाद में जाएंगे। पहले इसका अगर मैं IUPAC के हिसाब से देखने चले जाऊं तो इसको नॉर्मली हम क्या बोलते पता है? देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप ये है, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तुम लोग को सिर्फ ये बताना है मुझे कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है प्रायोरिटी के हिसाब से। अमाइन। अमाइन है, राइट? तो इसको 1 जाएगा और इसको 2 जाएगा, ध्यान देना इस बात पे। इसको 1 जाएगा, इसको 2 जाएगा। तो अपने IUPAC जो हमने सीखा है उसके हिसाब से इसको हम बोल देंगे 2 क्लोरो, और इसको बेंजीनामाइन या बेंजामाइन ऐसा लिखते बैठे। बट मैंने अभी भी आपको सिखाया कि ये अब आपको यूज नहीं करना है, इसको स्पेशल नेम दिया गया है, आपको वो यूज करना है। और भाई साहब का स्पेशल नेम है एनिलीन, and thus the name will be 2-chloroaniline, or else you can call it O-chloroaniline. 2-chloroaniline, or else you can call it O-chloroaniline, ortho-chloroaniline. You will understand if it is ortho, तो क्लोरो पहला वर्ड यूज किया गया, मतलब ये नहीं कि उसको फर्स्ट पोजीशन मिला है। एनिलीन पैरेंट है तो पैरेंट को ही 1 मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, और 2 मिलेगा क्लोरो। इट इज टू बी अंडरस्टूड कि 1 कहां जाएगा और 2 कहां जाएगा। वैसे ये भाई साहब हैं, कुछ लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट बोल देते हैं इसका हम लोग कि ये भाई साहब अगर आपको याद हो तो ये कौन है? टोलुइन है। सो इट विल बी 3 नाइट्रोटोलुइन या तो फिर M नाइट्रोटोलुइन, 3 नाइट्रोटोलुइन या तो फिर M नाइट्रोटोलुइन। वैसे इसका तुम लोग बोल सकते हो इसका थर्ड वाले का 4 ब्रोमोफिनॉल। यस, इट इज 4 ब्रोमोफिनॉल या तो फिर पैरा ब्रोमोफिनॉल। यस, पैरा ब्रोमोफिनॉल, श्रेया ने सही बोला, P ब्रोमोफिनॉल। सो आई होप जो लोग इतने क्विक नहीं है आंसर देने में, वो लोग को भी समझ में तो आ रहा है कि हो क्या रहा है इधर। नहीं समझ में आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स, यू शुड, यू मस्ट। नेक्स्ट, अगर मल्टीपल आ जाते हैं, ठीक है, तो भी हमें स्पेशल कंपाउंड तो पता ही है, स्पेशल नेम कौन सा है यहाँ पे? एनिलीन। तो
तुम लोग से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फटाफट। तो उस हिसाब से आप नंबरिंग करने जाओगे, लोएस्ट सेट कहाँ से वो ढूंढोगे। कॉमन सेंस है इसके अंदर, लोएस्ट सेट कौन सा वाला होगा, ये रहेगा लोएस्ट सेट। तो उस हिसाब से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 3-ethyl 2-methyl aniline, 3-ethyl 2-methyl aniline। वैसे ये वाले का भी फटाफट मैं नाम दे देता हूँ। सेट प्रॉपरली ढूंढेंगे हम लोग, प्रॉपर सेट ढूंढना बहुत जरूरी है गाइस, कि लोएस्ट सेट कहाँ से बनता है। एक बार फंक्शनल ग्रुप आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद इसका नाम आएगा 2-chloro-4-nitrophenols, 2-chloro-4-nitrophenols। तो ध्यान से देखो दोनों स्ट्रक्चर के नेम्स को, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट लोएस्ट सेट का है खाली, मैं फटाफट नाम बता रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, इतना तो तुम लोग सीख ही चुके हो अभी तक। ठीक है, ये दोनों के नाम मैंने बता दिए यहाँ पे। ओ जो बुक देख रहे हो, ये दोनों के नाम मैंने यहाँ पे बता दिए भाई। कोई डाउट है आपको तो पूछ लो कि सर ये नाम कैसे आया, समझ में नहीं आया। डाउट्स? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको। जब भी कभी बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप नजर आएंगे आपको, 2 मिथाइल, तो उस बेंजीन का 2 मिथाइल ग्रुप के साथ भी एक स्पेशल नेम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड xylene। एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू टाइम आने पर। ये चीज भी आपके टेक्स्ट बुक में है, बट इस चैप्टर में नहीं होगा। आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स नाम का एक चैप्टर होगा, उसमें ये चीज मेंशन किया है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि बेंजीन पे जब 2 CH3 ग्रुप रहेगा तो इट इज कॉल्ड xylene। तो सपोज ये ब्रोमो नहीं है यहाँ पे, सपोज ये ब्रोमो नहीं है यहाँ पे, तो फिर इसका नाम क्या हो सकता है, इसको हम ओजाइलिन बोलेंगे, इसको हम ओजाइलिन म्हणजे ऑर्थो, ठीक है, ओजाइलिन बोल सकते हैं। एंड प्रॉपर IUPAC नेम तो फिर यही जाएगा अपना जो भी है। ठीक है गाइस? यस सर। Yes, sir. We have 15 minutes to go. Good. Now, almost everything to be taught about IUPAC has been taught. Okay, there are certain things which will come up here and there. जो कुछ नए स्ट्रक्चर्स आप देखोगे वो हम नए चैप्टर्स जब डील करते जाएंगे तो उसमें आपको और इम्प्रूव करके बताते जाऊंगा। Today I will send you a sheet on our app as homework. तो शीट में बहुत सारे नेम्स रहेंगे आपके पास, बहुत सारे सिंपल रहेंगे, कुछ डिफिकल्ट रहेंगे, बहुत सारे सिंपल रहेंगे, कुछ डिफिकल्ट रहेंगे। ठीक है भाई? तो वो नेम्स आपको दिए जाएंगे, वो आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, बिकॉज दिस इज नॉट द लास्ट लेक्चर ऑफ IUPAC। एज आई सेड, नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ IUPAC। उसमें भी कुछ नया सीखेंगे हम, उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ नया सीखेंगे। ठीक है? सो आई विल सेंड यू अ शीट, वो शीट जितना हो सकता है आप सॉल्व करने के ट्राई करना, उसके बाद फिर कुछ नया चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है? आदर्श, टॉटोमर्स, ये आता है टॉपिक आइसोमेरिज्म, जो IUPAC के बाद आपको सिखाया जाएगा। ठीक है? हर एक टॉपिक डिसाइडेड है कब कब कैसे कैसे करना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Sir, from where we will check the answer of that sheet? चेक कहीं से नहीं करना, ना, ये खुद से लिखना है। चेक करने के लिए मैं आऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से डिस्कशन होगा, या ऑनलाइन अगर मैं चेक करता हूं तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ रॉन्ग आंसर्स, तो आपको बोल दूंगा किसी का कौन कौन सा रॉन्ग आंसर्स। ठीक है? सो रॉन्ग भी रहेगा, सो डू नॉट वरी, प्लीज अटेम्प्ट। पूरा शीट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के साथ साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट नया बाकी है सिर्फ, हाँ, साइक्लिक के लिए, तो वो करके मैं पूरा IUPAC का खात्मा, समाप्ति, जो भी बोलो, दैट विल बी एंडेड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नाउ जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन आउट देयर, it's a request
एडवाइस, वार्निंग, जो समझना है आपको समझ के बैठो भाई। 11th स्टैंडर्ड में घुस भी गए हो आप लोग लीगली, ऑफिशियली आप लोग 10th स्टैंडर्ड पास भी हो गए हो, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर में IUPAC के मामले में प्लीज 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 ये वाला पेज जो है which you can see on your screen right now 209, वो बहुत लोगों को अभी तक मेमोराइज नहीं हुआ है। जितना जल्दी हो सकता है प्लीज मेमोराइज करो, प्लीज मेमोराइज करो। ओके, थैलिक एसिड तो क्यों चाहिए अभी आदर्श? थैलिक एसिड अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है उसके लिए अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया ये आपका मेमोराइज करने वाला। लिख लिख के, जिसको होता है लिख लिख के करो, बट प्लीज जल्द से जल्दी। एग्जांपल वाला सेक्शन नहीं भी करोगे तो चलेगा। याद है मैंने बीच में क्या लिखवा दिया था तुम लोगों को? जनरल फॉर्मूला वाला सेक्शन तुम सब लोगों ने लिखा है। जो लोग नए स्टूडेंट्स है, प्लीज हैव अ चैट विद ओल्ड स्टूडेंट्स एंड दे विल टेल यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू मेमोराइज दिस थिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। once you are done with this, you go to page number 216. On that page number 216, you will find table 14.9. ठीक है, A and B, तो सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आपको दिए गए, जिसमें मैंने भी कुछ करेक्शंस करवाए हैं। आप याद करो कि नहीं इसके अलावा ये भी रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी इसके अंदर करेक्शन करवाने वाला हूँ। करेक्शन नहीं, सॉरी, एडिशन कराने वाला हूँ। कुछ एडिशन में ऑलरेडी करा चुका हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशन में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जितना जल्दी मेमोराइज होता है, फिर ये याद करो कि ये बहुत ही वीक फंक्शनल ग्रुप से तो इनके प्रीफिक्स ही यूज होते हैं, और उसी पेज पे फिर ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो दिया है कि कौन सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ऐसा। साथ में मेरे जो 5 रूल्स हैं, बेसिक 5 रूल्स which I have already given in my lectures, तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, ये सारी चीजें दिमाग में रखो। IUPAC कहीं नहीं जाने वाला, सब दिमाग में रहने वाला ही आप। गॉट इट? एक मिनट में बस आदर्श के क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दिया आदर्श ने, इसको क्यों चाहिए थैलिक एसिड, पर उसका आंसर दे देता हूं मैं, एंड देन फिर हम आपके रिजल्ट्स का थोड़ा डिस्कशन करें। ओके, रणुद्दीन, यू वांट पेज नंबर 209? क्यों बेटा, तेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है क्या? ये ले 209। कुछ डाउट था क्या कि स्क्रीनशॉट लेना है तुझे? रिप्लाई कर भाई। बुरहानुद्दीन खोखर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, स्क्रीनशॉट चाहिए। तो बेटा स्क्रीनशॉट मत लेना, तेरे पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो ऑनलाइन जा और 11th स्टैंडर्ड का PDF डाउनलोड कर ले। स्क्रीनशॉट क्यों लेगा? PDF डाउनलोड कर लेना तू, टेक्स्ट बुक का PDF तो मिलता है ऑनलाइन। ओके, तो स्क्रीनशॉट कब तक क्या रखेगा? PDF तो फुल टेक्स्ट बुक तेरे पास आ जाएगा भाई। किसी फ्रेंड से पूछ ले, उसने डाउनलोड किया रहेगा तो या तो डायरेक्टली तेरे को भेज देगा वो। ठीक है, चलो हाँ, फटाफट एक बार मैं थैलिक एसिड लिख देता हूँ और फिर रिजल्ट डिस्कशन पे आएंगे। थोड़ा हमें भी एक्साइटमेंट लगता है यार, रिजल्ट के बाद तुम्हारा पहला लेक्चर है ना ये। बेंजीन पे 2 COOH ऊपर नीचे, आजू बाजू, दिस इज थैलिक एसिड। ठीक है आदर्श? सर इसके कॉमन नेम याद रखना जरूरी है? हाँ, थैलिक एसिड ही इसका कॉमन नेम। यस सर, कॉमन नेम। हाँ, इसका प्रॉपर IUPAC नेम क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर। सब पता है IUPAC नेम। तो तू चुप बैठ। चला, अभी कौन कौन है अपने ग्रुप में भाई? कौन कौन है अभी? अभी निकल मत जाना, ऐसा धीरे धीरे ऐसे कल्टी मत ले लेना। चलो, I'll call out the names and you tell me your percentages which you got. ठीक है, हमें भी तो पता चले भाई कैसे कैसे लोग हैं अपने पास, मेहनत वाले लोग। कोरोना का आशीर्वाद किस किस पे ज्यादा रहा है? आदर्श सिंह, परसेंटेज 94.40। ओके। अस्मा शेख 91।
Okay. Bernadine. Bernadine. No response. You can write in the chat if you want. If you can't, if your mic is not working properly. Okay. Burhanuddin. 73. Okay. Okay. Diana. 95.40. 95, highest we have got here. Diana. Okay. Drashti. Drashti 84. Okay. Joanna. Joanna Joseph. 90. Good. Narisa. $94.60. Okay, nice, beautiful. Omkar. $87. Prachiti, if I'm pronouncing it right. Prachiti. Yeah, Prachiti. Prachiti Satam. No response. Prathamesh Patil. Prachiti 76. Okay. Prathamesh Patil. 86. Okay. Priyanshi. Priyanshi. 85. Redmi. Redmi name change नहीं किया अभी तक भाई. Redmi. Okay. Saloni. Saloni Pandit. 86. Sanskriti also wrote 85. Okay. Samir. $84. Sandrine. Again pronunciation पे ध्यान देना भाई, नहीं है तो मुझे correct कर लिया करो. Sandrine. If you can come on mic. Sandrine. You're not coming on mic, so I'll keep on pronouncing it as Sandrine. Whether it's wrong or right, that's up to you then. 79. Okay. Sanika. 85.20. 85. Okay. Okay. And then you have Sarah. Sarah or Sarah? Sarah or Sarah? Sarah. 86. Okay. Okay. Then you have Satyam. 70.60. 70.6. Okay. Shreya. ईमानदार हैं लेकिन पब्लिक अपने अपना ईमानदारी से बता रहे हैं. I hope. Shreya Mishra 88. Okay. Shrishti 86. Swati Thakur 85. Tanvi 85. Urvi 85. Good marks you have got, yeah. Most of you are 80 above. Nice. Ved, Urvi का नहीं रिस्पॉन्स आया अभी तक. Ved 78. Vedant, Vedant साथ में, क्या बात है. Vedant ICSE, हाँ उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक. ओके. 81. ओके. ICSE में और अच्छा रिजल्ट आएगा यार, उसमें तो बेटर रिजल्ट आएगा, डोंट वरी. चिन्मय, Urvi 81. ओके. चिन्मय, Lance and Shruti. No response yet from Chinmay, Lance and Shruti. Okay. So I hope what you have hoped for, उससे ज़्यादा ही आपको marks मिला होगा. Is anyone disappointed here? So I was hoping for this, but I got this much. Is there anyone जो disappointed है result से? No one?
Okay, that's what I thought. No one is disappointed by the results. Good. Yes, Satyam is disappointed. Okay, you are expecting more. That is okay. ठीक है. अच्छी बात है. But भाई देखो, all in all, you students are in luck. I have maintained this from the first day. कोरोना ने किसी का भला किया है तो स्टूडेंट्स का भला किया. ठीक है, हमारे पास भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो बेचारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 50 to 60 तो लेके आएंगे सर, अगर नॉर्मल एग्जाम्स होते तो. नॉर्मल टेस्ट, कोरोना वाज नॉट देयर, तो 60% वाला बच्चे को 75 प्लस मिला है. 75 प्लस. सो ही इज ओवर द मून. तो बहुत सारे लोग का ऐसा हुआ है. सलोनी विल गिव द सीईटी. ओके, ठीक है. But yeah, whatever results you have got, you should be excited about that. And you have a different challenge. हर साल जैसा नहीं है. कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. वो एग्जाम्स पे ध्यान दो. अभी ये रिजल्ट रहेगा, अभी जिंदगी भर आपके ऊपर चिपक गया कि ये रिजल्ट तो रहेगा ही. अब 11th की तैयारी अच्छे से कर लो प्लीज. ओके, एंड माय गुड विशेस आर विद एवरी वन ऑफ यू. नो मैटर व्हिच फील्ड यू सिलेक्ट, डू गुड, डू वेल. ओके, इसी के साथ आई विल पोस्ट द होमवर्क इन आवर ऐप, राइट अकेडमी ऑनलाइन ऐप, एंड वहां से आप होमवर्क देख लेना. प्लीज अटेम्प्ट देम. राइट और रॉन्ग वो छोड़ दो, अटेम्प्ट करना. नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू एंड एंड IUPS. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर. Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Shreya. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you. Sir. Bye bye.